Hello everyone, how are you? Fine, you must be doing well. It's been a long we haven't met. So today I came with a topic of personality, a very unique topic, and we all are fascinating about developing our personality. There are a number of trainers, motivational speakers like Sandeep Maheshwari, Gaur Gopal Das, and your life skill trainers. There are a number of people who actually tell us about enhancing the personality. But do you know really what actually personality is? Uh, Personality depends upon like what do you perceive about yourself. The number of theory have been given, like if you will google out, Johari Window has given four personality types, that is passive, aggressive, active, and the assertive one. So let me explain what is passive, what is assertive, what is active, and what is aggressive. Personality type, the first one is passive. Passive means what? The people who do not actually open up, they understand, they feel whatever, they are unable to express their feelings. मतलब वो लोग suppress करके रखते हैं अपनी feelings को, अच्छे से express नहीं कर पाते हैं. ठीक है, and that is the reason कि sometimes they feel very low, very bad. Fine. So what ultimately passive people do? They are harming themselves. Okay. The second personality type is active. The active people actually they try to respond in some way, but somehow by reacting in wrong manner and otherwise not understanding the person, they maybe make the situation bad or they create some hassle. Wherein the people who are aggressive, they actually without understanding the situation, they try to react. ठीक है, वो अग्रेसिव हो जाते हैं, बिना समझे ही बिना सोचे ही बोल देना, इमीडिएटली रिएक्ट कर देना, ये अग्रेसिव पीपल होता है. वेर इन द बेस्ट personality type is assertive. What assertive means? You understand the scenario, you sympathize the situation, you understand that the viewpoint of that person, and मेकिंग आउट एवरीथिंग, आप अपना पॉइंट भी बड़े अच्छे से कूल वे में ऑनेस्टी से काम होके रिस्पॉन्ड करते हो. दैट इज कॉल्ड assertiveness. So what I do suggest is try to be assertive. Again, another what people have understanding about personality, that there are two types of people, introvert and extrovert. राइट. सो इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो कम एक्सप्रेस कर पाते हैं, एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं वो बोल के अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं. बट एक्चुअली सिर्फ ये टाइप्स नहीं है. पर्सनालिटी हर एक की अलग होती है, हर एक पर्सन की अपनी स्किल, अपनी एबिलिटी होती है और उसको इन्हांस किया जा सकता है. तो इफ यू रियली वांट टू एनहांस योर पर्सनालिटी, यू नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट what your personality type is, right? So इन चारों में से या छह जो मैंने बताया उनमें से आप सोचो कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है और आप क्या क्या एनहांस करना चाहते हो. हियर आई विल गिव यू सम कॉमन थिंग्स, कॉमन गाइडेंस अबाउट द पर्सनालिटी. फाइन. So let us go ahead. Personality development tips I'm going to give you. I'm not saying that these are the only tips will be helpful to you, but these are the tips which will give you that boost, give you that the common enhancement of your personality. Know your इनकम्पेरेबल. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये जान लीजिए, जैसे मैंने बताया कि सब लोग एक जैसे नहीं होती है, सबकी स्किल्स, सबकी पर्सनालिटी टाइप डिफरेंट होती है. तो कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत छोटा समझते हैं खुद को, कभी कभी बहुत बड़ा समझते हैं, या तो सहमा सा समझते हैं. कभी कभी हमें लगता है कि मतलब हम ही कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे. सो सी, आप यूनिक हो, सबसे पहले ये मेंटालिटी बना लो. इफ यू विल मेक दिस, नो, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर थिंग्स एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट एंड यू विल फेस द वर्ल्ड इन डिफरेंट मैनर. नो दैट यू एंड द अदर पर्सन आर यूनिक एंड आर जस्ट इनकम्पेरेबल. मतलब ईगो की बात नहीं है बेटा, बट कॉन्फिडेंट की बात है. दूसरे लोग भी अपने तरीके से यूनिक है, हम भी अपने तरीके से यूनिक है. सो दिस अंडरस्टैंडिंग यू विल हैव टू मेक. बी काइंड टू योरसेल्फ. We are taught to be kind to others, yet many of us fail to be kind to ourselves. Self compassion की बात है यहाँ पे. like
सब लोग बोलते हैं ना दूसरों के साथ अच्छे से पेश आओ, चाहे दूसरा हमसे अच्छे से पेश आ रहा है कि नहीं, इट डजेंट मैटर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले बी काइंड टू योरसेल्फ। अरे भाई, मेरे ग्लास में अगर पानी होगा, अगर मैं प्यासी नहीं हूँ, मैं मतलब आई एम फुलफिल्ड विद, आई एम नॉट हंग्री, अगर मेरे पास प्रॉपर पर्याप्त मात्रा में खाना है, पर्याप्त मात्रा में अगर मैं काम हूँ, तो मैं दूसरों को दे पाऊंगी ना। सो फिल योर सेल्फ विथ काइंडनेस फर्स्ट। अगर आप में काइंडनेस है, अगर आप अच्छे हो, तो दूसरों को आप काइंडनेस दिखाओगे। एंड इफ यू आर काइंड टू अदर्स, you know, people will come to you like anything, because kindness is something which we all are looking for. अगर हमारे साथ भी कोई अच्छे तरीके से पेश आता है, हमें अच्छा लगता है। सबसे पहले अपने साथ नाइंसाफी ना करें, अपनी हेल्थ का, अपने इमोशंस का ध्यान रखें, और दूसरों के साथ भी काइंड रहें। Give space to imperfection. People and situations always do not fit within your frame of perfection. सबसे पहले तो 5 fingers are not same. Everyone is unique. तो जरूरी नहीं है कि हम 100% अच्छे ही हैं या सामने वाला भी 100% परफेक्ट होगा। कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी स्किल्स होती हैं। तो सबसे पहले तो जो आपकी इम्परफेक्शंस हैं, जो आपकी डिसेबिलिटीज हैं, जो आपकी वीक पॉइंट्स हैं, उनको साइड में रख के उस पर काम करने की कोशिश करो। बट जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको भी अपने नजरिए में रखो एंड फील कॉन्फिडेंट, राइट? Spontaneity makes one to be fun around by being 100% aware in the present moment. हम क्या करते पता है, कभी कभी when you are, for example, I am speaking to you, right now I am making a video, and if I'm not looking at the camera, what will it show? That I am a bit not confident, right? So सबसे पहले अगर आप कॉन्फिडेंस दिखना चाहते हो, आपकी पर्सनालिटी इंप्रेशन अच्छी पड़े, तो आपको उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना पड़ेगा 100%। ठीक है? वो कैसे रह सकते हो? आई टू आई कॉन्टैक्ट बना के। स्पॉन्टेनिटी मीन्स जब आप अच्छा फील करते हो, व्हेन यू आर फीलिंग गुड, और लोगों को हंसाते हो, एनवायरनमेंट आपके पास, आपके अच्छे वाइब स्प्रेड होते हैं, तो ऑटोमेटिक लोगों को आपके साथ अच्छा लगता है। सड़ा हुआ सा मुंह लेके अगर मैं बैठ जाऊंगी तो अच्छा लगेगा क्या आपको? किसी को भी नहीं लगेगा यार, इसके साथ क्या रहना, जब देखो तब रोतली शक्ल होती है। फाइन। सो द थिंग इज, अपने आप में अपने फेस पे स्माइल, अपनी आंखों में कॉन्फिडेंस, आई टू आई कॉन्टैक्ट बनाना, अपनी बॉडी लैंग्वेज प्रेजेंटेबल होना, दीज ऑल आर थिंग्स मैटर इन योर पर्सनैलिटी। Surely something resides in this heart that is not perishable. Be light in mind and heart. Being light and in mind and heart makes you truly happy from within. मतलब वो बोलते हैं ना, प्लास्टिक स्माइल फेस पे होना, तो मतलब आप अंदर से सैड हो और ऊपर से खुश दिखने की कोशिश करते हो। That doesn't work for longer duration. You know, nowadays people can make out कि आप मतलब सिर्फ दिखावा कर रहे हो या रियली हैप्पी हो। So the thing is, real confidence, real happiness, real apprehension should be there inside you. If it is there inside, it will come outside. आपको फेक दिखाने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। Nowadays in teenagers, adolescents हम देख सकते हैं डक सिंड्रोम आ गया है। What does that means? अंदर बहुत सारी टेंशन चल रही है, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, बट हमें तो अच्छा लगना है, यू नो, अच्छे दिखना है, तो हम क्या करते हैं, और बचपन से हमें सिखाया भी जाता है ना, इफ समवन आस्क्स यू दैट हाउ आर यू, व्हाट विल वी से? आई एम फाइन, थैंक यू सो मच, हाउ आर यू? ऐसे थोड़ी ना बोलेंगे कि आई एम नॉट फाइन। So the thing is, yes, of course, like every time showing that you're not fine or you're not good is not a good way to, represent yourself. But the thing is, at least आप honest हो सकते हो, एंड उस जो इनर जो वीकनेस है आपकी, उस पे काम कर सकते हो। तो ट्राई टू बी प्योर फ्रॉम योर हार्ट, बी ऑनेस्ट, बी हेल्दी फ्रॉम इनसाइड, स्टे एंथुजियास्टिक। मरा मरा सा अगर मेरा प्रेजेंटेशन है, आपको अच्छा लगेगा? कौन सुनेगा? ये मैम तो बस आती हैं, बोल के चली जाती है, नहीं। बट वेन आई एम एंथ्यू, यू नो, वेन योर टीचर एंटर्स, when you were in primary, आपने देखा होगा टीचर आती है और अच्छे अच्छे कुछ नई सरप्राइजेस लेके आती है, एंड वेन शी टीचेस यू प्रॉपरली, इवन जो मोटिवेशनल ट्रेनर होते हैं स्टेज पे जाके ये करना है हमें, वो करना है। सो जब कोई एंथ्यू होता है ना, तो ऑटोमेटिक हम में भी वो एंथुजियाज्म आ जाता है। सो यू मे बी एंथुजियास्ट, नॉट ओवर रिएक्टर, बट एंथुजियाज्म इज इन्फेक्शियस एंड अपीलिंग। पता है, जब कोई स्माइल कर रहा होता है, जब कॉमेडी चल रही होती है आसपास, जब आसपास सब लोग खुश होते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमें भी हंसी आ जाती है। तो जनरली जब आप एंथुजियाज्म
दिखाते हो, आप में एनर्जी है, तो आपके आसपास के लोगों में भी एनर्जी आ जाती है। किसे अच्छा नहीं लगता? when you are happy, you will spend that impression to other, you will share that impression to others. आपकी इंप्रेशन ऐसी जाएगी कि आप हमेशा एंथ्यू रहते हो, आप अच्छे रहते हो, आपके साथ लोगों को अच्छा लगता है। तो दिस इज कॉल्ड गुड थिंग। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने कहा है दैट डिस्पाइट एडवर्स सिचुएशन इन लाइफ वन मस्ट नेवर गिव अप देयर एंथुजियाज्म। लाइफ में अप्स डाउन आते रहेंगे। What we need to do is we need to try to focus on bring out the solutions instead of staying sad. तो हमें give up नहीं करना है. It's okay to feel a bit low at particular time, but then have to come out of it and show your enthusiasm to others. Be a better communicator. अब कम्युनिकेशन पे अगर बोला जाए तो बहुत सारा बोला जा सकता है, बट बेटर कम्युनिकेटर का मतलब क्या है? when you are listening to others silently, when you are taking others importantly, अगर give respect and take respect वाली बात है, अगर आप अच्छे से सुनते हो, गुड लिसनर हो, तो आप अच्छे कम्युनिकेटर भी बन सकते हो. सो ट्राई टू पुट योर पॉइंट्स इन प्रॉपर मैनर, बीइंग काइंड, बीइंग हम्बल एंड बीइंग रिस्पेक्टफुल. अ स्किलफुल कम्युनिकेटर कैन विन ओवर पीपल एंड एडवर्स सिचुएशन. ब्रिंग क्लैरिटी इन योर कम्युनिकेशन. कई बार क्या होता है कि हम अपने पॉइंट्स अच्छे से रख नहीं पाते. अगर आपको कहना है कि मैम आप इंग्लिश में नहीं हिंदी में एक्सप्लेन करिए, सो यू कैन सिंपली से मैम विल यू प्लीज एक्सप्लेन दीज पॉइंट्स इन हिंदी, आई एम अनेबल टू अंडरस्टैंड. क्या आप इसे हिंदी में एक्सप्रेस करेंगे? तो कितना अच्छा लगेगा. पर अगर आप बुरे तरीके से बात करोगे, हिंदी नहीं आती क्या, ऐसे कैसे बात कर रहे हो, मीन्स मतलब बड़ी अंग्रेजी झाड़ रहे हो, सो अगेन सी हाउ रूड इट इज टू से. द थिंग इज you should communicate your points to others. As I said, be assertive, ठीक है, लेकिन उसका मतलब क्या है? आपको पोलाइट और हम्बल वे में एक्सप्रेस करना है. जब आप अपनी फीलिंग्स, अपनी थिंकिंग लोगों को अच्छे से प्रॉपर वर्ड में शेयर करना सीखोगे, तो आपकी वैल्यू भी होगी, आपकी इंप्रेशन भी होगी कि भाई इनके साथ अगर जाते हैं तो कोई हसल नहीं है, ये बड़े अच्छे से अपनी बात रखना जानते हैं, और आपको सोल्यूशन भी मिलेगा बातों का. Be warm and approachable. See, being warm means what? Being hot? No. The thing is, जब जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ हमें अच्छा लगता है, एक वार्म फीलिंग आती है. सो वी ऑल लाइक पीपल विद whom we can easily mingle and talk to. No one likes a person who responds with a straight free. So learn to be warm, flash that smile, and be friendly and be ready to share and help. When you are humble, when you are honest, when you are giving that warm feeling, don't worry. अगर फ्रेंड्स, हमारे कोई फ्रेंड्स होते हैं ना जो हमें बोलते हैं डोंट वरी, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आता है, आपको मम्मी को नहीं बता सकते हो, तो आई विल हेल्प यू आउट, आई एम देयर फॉर यू. कितना अच्छा लगता है जब पेरेंट्स भी बोलते हैं कि बेटा फिक्र मत करो, अगर नहीं कर पाओगे तो वी आर देयर, विल हेल्प यू आउट. टीचर्स भी ऐसे कहते हैं. तो सो अगर हमें अच्छा लगता है, so we should also be warm to others. We should be also approachable. If you are approachable, your friends, your relatives, your social people, जो भी हैं वो आपके साथ आएंगे. In future when you will develop your career, तो career में भी ये चीज़ें बहुत काम आती है. Doing things with style. Do things with style, it adds zing to your personality. Work with passion and a relaxed mind. Don't let anything distract you. अब यहाँ पे स्टाइल का मतलब क्या है? बहुत बड़े स्टाइल आइल कौन बनना, अच्छे से क्लोथिंग पहनना, या अच्छी सी हेयर स्टाइल करना, कलरिंग हेयर करना, बहुत सारी ज्वेलरी पहनना. सी इट इज अबाउट द आउटर पर्सनैलिटी. वो भी करना चाहिए, लेकिन बियॉन्ड लिमिट जाके नहीं. बट स्टाइलिश मीन्स समथिंग यूनिक शुड बी देयर, whether it is about your communication, whether it is about your posture gesture, whether it is about your knowledge. तो जब आप स्टाइलिश बनते हो, मतलब आपकी बात में कुछ यूनिकनेस है, आपकी पर्सनालिटी में, आपकी ह्यूमिडिटी में, आप जो ह्यूमर पैदा करते हो उसमें कुछ अच्छा है, तो ऑफ कोर्स पीपल आर गोइंग टू लाइक यू. सो डू वर्क अपॉन दीज थिंग्स, एनहांस योर पर्सनालिटी, इनर आउटर एज वेल. वर्क अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल्स and be a good presenter. Wish you all the best, my children. Bye bye.